Good afternoon, dear students. Today we shall study about the velocity profile for the steady laminar motion of an electrically conducting fluid moving along uniform channel under the action of a uniform transverse magnetic field, or we can say we have to study hydromagnetic current flow between two parallel non-conducting plates under a transverse magnetic field. And students, you know about plane current flow, or simple we can say shear flow is the flow between two parallel plates, one of which is at rest and other moving with uniform velocity. And here the pressure gradient is taken to be 0. I'm saying about plane current flow. Okay. Now consider one-dimensional problem, okay, in which a liquid is flowing horizontally between two infinite horizontal stationary walls. Now see here. Let us choose the rectangular Cartesian coordinates x, y, z such that boundary walls have the equation z is equal to plus minus L. Okay? Here fluid is flowing along x-axis with velocity Vz, and magnetic field is constant along z-axis, which is V0. Therefore, velocity V is equal to, students, Vz 0 0 along by 0 z0 along z-axis 0, and here magnetic field along z-axis is constant, which is V0. And let this acceleration due to gravity is 0 0 minus g. Okay, with the acceleration due to gravity. We know the equation of continuity. We know now, students, which is equal to divergence V is equal to 0. Or let V denotes the disturbance in magnetic field produced by the currents. जैसे फ्लूइड चलेगा along x axis, तो ये करंट से मैग्नेटिक फील्ड है ना प्रोड्यूस्ड, यही है डिस्टर्बेंस, ये लिया बेटा. लेट बी denotes the disturbance in magnetic field produced by the currents, so that the total magnetic field at any point is given by B is equal to what? B naught plus B. B constant magnetic field plus B, and it will be velocity Vz, or we are taking Vz. This velocity is Vz, वैन वाला, ये Vz 0 0. ठीक है, फ्लूइड जो है फ्लो कर रहा है लॉन्ग एक्स एक्सिस, तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी B जो है क्रिएट होगा लॉन्ग दिस एक्सिस, वो Vz है, और टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्लस डिस्टर्बेंस इन मैग्नेटिक फील्ड, वो हो जाएगा स्टूडेंट्स, दैट इज इक्वल टू दिस वन. We know the magnetic induction equation is given by, you know students, it is del V by del T curl B cross V plus eta del square V. You know this. Or for steady flow, but for steady flow del V by del T is 0. Therefore, this equation reduces to curl B cross V plus eta dash square B is equal to 0. Or we can say this is equal to curl B cross, and you know students, B is equal to what? B naught plus B plus eta del square, and this is B is what? V naught plus B is equal to 0. Or it implies curl B cross, and students, you know B naught plus B. Here B is this one. B is
B naught plus B. B naught is 0 0 B naught and B is BZ. This BZ 0 0 ऐड करो इसको, क्या मिलेगा? BZ 0 B naught. ये मिल गया हमें, ठीक है, ये मिल गया। इसको आप BZ लिख सकते हो, B लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये मिल गया आपको B 0 B naught plus eta del square B is 0. And you know students, this is curl. Curl means del cross. And this velocity B along x-axis BZ. B लिख दो चाहे BZ लिख दो, B लिखा है लिख लो, 0 0 along y और Z तो 0 0 है। और मैग्नेटिक फील्ड along this is BZ लिखो या B लिखा है, Z नहीं मेंशन कर रहे, कोई बात नहीं, चल ऐसे भी लिख सकते हैं 0 और this is B naught plus eta del square B and क्यों this B naught is constant, therefore the derivative of this right del square B naught, it will be what beta? It will be 0. Then plus eta del square B is equal to 0, right? ये हो गया। Now next comes del cross. Now the value of B naught जो था हमारा कर्ल B क्रॉस, पिछला आप देखते जाएं तो आप नो सी स्टूडेंट्स, ओहो ऐसे, तो वो क्या था? कर्ल दिस इज, पीछे क्या था बेटू? ये था हमारा कर्ल B क्रॉस B 0 Z नॉट प्लस इटा डेल स्क्वायर B। इसको हमने कर लिया, ठीक है, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या बना? ये बन गया डेल क्रॉस, किया ना सॉल्व, आता है करने आपको। आई कैप डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया तो क्या मिला आपको? इससे पहले से तो ये मिला 0, सेकंड में माइनस J करके, और इसको किया B नॉट माइनस आ गया, और K से किया तो ये सारा 0 बन गया प्लस K करके, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास प्लस इटा डेल स्क्वायर B, पता है बच्चों को, और इट इम्प्लाइज। नाउ नेक्स्ट ये देखो, ये बन गया डेल क्रॉस 0 माइनस B नॉट 0 प्लस इटा डेल स्क्वायर B। इट इम्प्लाइज स्टूडेंट्स, फर्स्ट रो क्या आ गई? आई कैप J कैप K कैप, सेकंड रो क्या आ गई? 0 0 डेल वाई डेल जेड, ठीक है। हमारी ये जो ले रहे हैं ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, वो अलोंग जेड एक्सिस है, देन वी आर टेकिंग दिस डेल वाई डेल जेड, ठीक है। और थर्ड रो जो है वो क्या बनेगी? 0 माइनस B नॉट 0 प्लस इटा डेल स्क्वायर B। इसको सॉल्व कीजिए मेरे बच्चों, आई से किया 0 और ये यहाँ से क्या बना? माइनस माइनस प्लस क्या बन गया आपका? V नॉट डेल VY डेल जेड प्लस इटा, और सारे बाकी तो 0 0 बन गए, प्लस इटा डेल स्क्वायर B इज इक्वल टू 0। ये आ गया एक, इसको नंबर 1 दे दीजिए इस इक्वेशन को। कई बार क्वेश्चन यहीं तक आता है कि प्रूव करो, इस डेरिवेशन को प्रूव करो। इसके लिए, किसके लिए? जो आपका ये क्वेश्चन है दिया गया, आपको इसमें दिया गया कि हाइड्रोमैग्नेटिक टू फ्लो जो है बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स, है ना, पैरेलल नॉन कंडक्टिंग प्लेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ कांस्टेंट ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये डेरिवेशन ड्राइव करो। तो ऐसे करना है, यहाँ तक करना है फिर, ठीक है। यहाँ तक एक ही क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है बेटा, अब समझने की कोशिश करना। कुछ क्लियर ना हो तो आप फोन करके पूछ, मतलब जब जैसे हम क्लास उसमें भी लेते हैं, क्लास में पूछ सकते हो आराम से, ठीक है ना। हाँ, पर करना है इसको अच्छे से, जैसे आपको बताया जा रहा है, राइट। अब लीजिए इक्वेशन ऑफ मोशन। We know the equation of motion for hydromagnetic fluid के लिए जो है वो क्या है?
मतलब क्या बोल रही हूँ मैं, मैग्नेटो फ्लूइड डायनेमिक्स के लिए, मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक्स के लिए जो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन, वो क्या होती है? वो होती है स्टूडेंट्स रो dv/dt इज इक्वल टू, सारा पता है आपको d/dt क्या है, सारा बताया गया है, माइनस ग्रेडियंट, पिछला सारा यूज हो रहा है, पिछला नॉलेज होगा तभी कर पाएंगे ना, प्लस रो जी प्लस जे क्रॉस बी प्लस म्यू डेल स्क्वायर बी प्लस 1/3 म्यू ग्रेडियंट डाइवर्जेंस बी। ये आपको याद में होनी चाहिए, बार बार आप ड्राइव नहीं कर सकते, और हर चीज़ इसमें क्लियर की है पहले भी हमने, अब बार बार पिछली चीज़ें नहीं रिपीट करते रहेंगे, ठीक है। हाँ, वी नो कि डाइवर्जेंस बी 0 है। नाउ पुट दिस डाइवर्जेंस बी इन द अबव इक्वेशन, द अबव इक्वेशन रिड्यूसेस टू, किस में रिड्यूस हो जाएगी, और कहाँ से आया ये हमारे पास डाइवर्जेंस बी 0? स्टूडेंट्स इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से, from equation of continuity. Now we get what students? This is rho dv/dt minus gradient p plus rho g plus j cross b plus mu del square b, or rho dv/dt minus gradient p plus rho and g is what? 0 0 minus g. Along z axis downward है तो साइन क्या होगा इसमें, मतलब ऐसे है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो अपना नीचे को होता, ऊपर को तो क्या है माइनस जी, और प्लस 1 और यू नो स्टूडेंट्स इसको चेंज करेंगे हम, यू नो दिस जे इज 1 म्यू कर्ल बी, तो व्हाट हियर बी इज बी नॉट प्लस बी, तो देयरफॉर स्टूडेंट्स वी राइट हियर इंस्टेड ऑफ दिस जे क्या लिख रहे हैं, 1 म्यू कर्ल बी नॉट प्लस बी, और क्रॉस ये किसकी जगह लिखा, जे की जगह, जे इज इक्वल टू, हमें सारा पता है ये जे इज इक्वल टू व्हाट, 1 म्यू कर्ल बी, तो हमने कर दिया इसको प्लस 1 म्यू कर्ल म्यू बी इज व्हाट, बी नॉट प्लस बी, एंड क्रॉस दिस बी इज व्हाट, बी नॉट प्लस बी, प्लस यू नो स्टूडेंट्स म्यू अपॉन रो इज न्यू, therefore it is, और रो से मल्टीप्लाई डिवाइड रो न्यू डेल स्क्वायर बी, इसको सेकेंड नंबर दे दीजिए, और नाउ आफ्टर दिस हियर वी हैव टू कैलकुलेट दिस वन, व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट कर्ल बी नॉट प्लस बी क्रॉस बी नॉट प्लस बी, वी हैव टू कैलकुलेट दिस वन, और therefore this students कर्ल बी नॉट प्लस बी क्रॉस बी नॉट प्लस बी is equal to कर्ल, you know beta b naught plus b is b 0 b naught cross b naught plus b is what beta, b 0 b naught, we know this right, चाहे b z कर लो चाहे b लिखा है लिख रहे हैं लिख लो। अब now see, और कर्ल ऑफ दिस means del cross b 0 b naught, तो i j k 0 0 डेल बाई डेल जेड है ना, अलॉन्ग मैंने बताया पहले भी, और ये बी 0 बी नॉट क्रॉस बी 0 बी नॉट। नाउ सॉल्व दिस वन, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपेंड दिस डिटर्मिनेंट, व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट स्टूडेंट्स, फर्स्ट जो है आई के साथ जो किया ये 0 बन गया, माइनस जे करके यू विल गेट व्हाट स्टूडेंट्स, यू विल गेट दिस माइनस माइनस प्लस हो गया डेल बी बाई डेल जेड, और के साथ 0 और बी नॉट बी बी 0 बी नॉट, और अब इसको लिखिए दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, तो आई जे के फर्स्ट रो किसकी बन गई 0 डेल बी बाई डेल जेड 0, सेकेंड रो बी 0 बी नॉट। नाउ एक्सपेंड दिस, you will get beta this कर्ल v इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको, ये मिल गया ये कर्ल बी नॉट प्लस बी क्रॉस बी नॉट प्लस बी, क्या मिला आपको बी नॉट डेल बी बाई डेल जेड 0 माइनस बी डेल बी बाई डेल जेड, राइट। तो देयरफॉर इक्वेशन 2 इन स्टेडी स्टेट इम्प्लाइज, स्टेडी स्टेट में जो है ये इक्वेशन जो है बेटू आपकी या क्या बन जाएगी स्टेडी स्टेट में, है ना,
पीछे जो है आपका क्या था, रो डी वी बाई डी टी, वो क्या बन जाएगा आप उत्तर 0। इक्वेशन 2 देखो, फिर माइनस ग्रेडियंट पी रहा, फिर प्लस रो जी, जी की जगह ये आ गया 0 0 माइनस जी, फिर जे क्रॉस बी हमने फाइंड किया, वो क्या आया स्टूडेंट्स 1/μ, और उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, जो भी आई वो आई 1/μ बी नॉट डेल बी बाई डेल जेड 0 माइनस बी डेल बी बाई डेल जेड, ये बनी बच्चों, और प्लस रो म्यू डेल स्क्वायर बी। अब हम इट इम्प्लाइज, अब हम ले लेंगे इसको लॉन्ग एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस, है ना, फ्लो तो इन दोनों के बीच में ही हो रहा है ना, एक्स और जेड में। तो फिर हम लॉन्ग एक्स एक्सिस जो लेंगे, लीजिए इसमें स्टेडी स्टेट में बोल दिया, दूसरी डेल बी बाई डेल टी 0 हो गया। अच्छा, अब इसमें क्या रहा, ये माइनस लॉन्ग एक्सिस माइनस ग्रेडियंट पी क्या बन गया माइनस डेल पी बाई डेल एक्स, और लॉन्ग एक्सिस में रो 0, ये 0 हो गया, और यहाँ क्या बन गया प्लस 1/μ बी नॉट डेल बी बाई डेल जेड लिख दिया वो। फिर अगली टर्म रो वी डेल स्क्वायर वी, ये क्या बन गया अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, तो इसमें क्या हो जाएगा, हाँ यस बेटू, और ये जो है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो ये बन गया आपका रो न्यू डेल स्क्वायर वी बाई डेल जेड स्क्वायर ये, और इसको नंबर 3 दे दीजिए आपकी, और ये इक्वेशन क्या बन गई माइनस दिस वन अलॉन्ग जेड एक्सिस ले लीजिए उसी ऊपर वाली इक्वेशन को, तो ये माइनस डेल पी बाई डेल जेड हो गया ना स्टूडेंट्स। और ये जो है अपनी जेड के लिए रो जी माइनस जी है तो माइनस रो जी हो गया, और ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये देखो पुत्र, ये जेड के लिए अपना ये क्या बन गया माइनस बी डेल बी बाई डेल जी डेल जेड अपॉन मतलब इंटू 1/μ माइनस वो क्या बन गया माइनस बी बाई म्यू डेल बी बाई डेल जेड इज इक्वल टू 0। और ये जो है अपना ये अलॉन्ग जेड एक्सिस, ये डेल स्क्वायर बी बाई डेल जेड, ये क्या हो गया, ये 0 हो गया। अलॉन्ग एक्स एक्सिस तो है ना, वेलोसिटी जो है फ्लूइड की अलॉन्ग एक्स एक्सिस है बी जेड, है ना बेटू, वो ली है, जेड एक्सिस में तो 0 ही है, तो वो तो खत्म हो गया। ये क्लियर है, दिस इज क्लियर, ये ऐसे बना, क्लियर नहीं हो कोई चीज तो पूछ लेना। और फ्रॉम इक्वेशन 3 देखो मेरे बच्चों, माइनस डेल पी बाई डेल एक्स क्या बन गया, ये सारा ले जाओ उस तरफ, माइनस बाहर लगा दिया बी नॉट अपॉन म्यू डेल बी बाई डेल जेड प्लस रो न्यू डेल स्क्वायर बी बाई डेल जेड, वो कांस्टेंट ले लिया, ले रहे हैं खुद, कैपिटल पी नाम लिख दिया इसका, कैपिटल पी, तो माइनस डेल पी बाई डेल एक्स क्या आ गया कांस्टेंट। यहाँ तक भी क्वेश्चन लग से आ सकता है, ये क्या हो गया, विच शोज दैट फॉर स्टेडी लेमिनार मोशन the pressure gradient in the direction of flow must be uniform throughout the flow field। हो गया ना, कांस्टेंट आ रहा है, right? Now after this what we have to do, now after this, now see fourth equation which is del p by del z plus rho g plus b by mu del b by del z। now integrating this इक्वेशन 4 विद रिस्पेक्ट टू जेड, 4 को कर दो इंटीग्रेट जेड से, तो ये पी रहा और रो जी जेड बन गया, और उसका भी क्या बना इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू जेड, ठीक है, तो वो तो अपना बी स्क्वायर बना ना बेटू अपॉन 2 म्यू, और दिस इज कांस्टेंट आगे, तो उसको लिख लिया पी नॉट एक्स, ठीक है, कांस्टेंट एक्स और जेड का ये आपस में, जब इससे लेंगे कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो ये इसके लिए ये जो है फिर कांस्टेंट हो जाएगा, आपको पता है ना, विद रिस्पेक्ट टू जेड ले रहे हैं तो एक्स जो है उसके लिए पार्शियल डेरिवेटिव में करते हैं ना ऐसे, कांस्टेंट हो गया।
बट हम पहले कर चुके हैं। ये माइनस डेल पी बाई डेल एक्स जो है वो कैपिटल पी है। भाई कैपिटल पी में भी फर्क समझो, वो है क्या, बी नॉट अपॉन म्यू डेल बी बाई डेल जेड प्लस रो न्यू डेल स्क्वेयर बी बाई डेल जेड स्क्वेयर। ये है सारा, पता है हमें सारी टर्म्स का, क्लियर है। तो अब हम क्या करेंगे, ये पी आ गया, अब रिप्लेसिंग पी बाई पी नॉट वी हैव। अब हम क्या कर लेंगे, जो भी p है इसमें माइनस डेल पी बाई डेल एक्स, इसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे, p नॉट से। और p नॉट जो हमने क्या लिया है, p प्लस रो जी जेड प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू। तो हमारा क्या बन गया बच्चों, हमारा माइनस डेल पी बाई डेल एक्स जो है वो p है, कैपिटल P कांस्टेंट। तो वो क्या बन गया, माइनस डेल पी नॉट बाई डेल एक्स माइनस पी। इंटीग्रेट किया मेरे बच्चों तो क्या बन गया, ये पी नॉट इज इक्वल टू माइनस पी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। मुझे लग रहा है क्लियर हो रहा है आपको, ठीक है। इसको कर दिया तो ये कांस्टेंट हो गया। नाउ आफ्टर दिस बट वी हैव टू डू, थोड़ा लेंथी है पर इजी है, सिस्टेमेटिकली करते जाएंगे मेरे बच्चों, सब कुछ मिलेगा। एक ही क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं, पहले भी मैं बता चुकी हूँ आपको। अब आपने साथ साथ मतलब ये सुनते जाना है, इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा, फिर से देख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। अब क्या है, कुछ झाड़ू पोछे लगे हुए सारे, कुछ और ही आ गया है। हाँ ये लिखिए, सॉरी, अब क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी नॉट इन 5। 5 कहाँ है बच्चों, 5 ये है ना, 5 इक्वेशन है, p प्लस रो जी जेड बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू इज इक्वल टू पी नॉट एक्स। तो क्या बनेगी, पी नॉट जो है वो क्या है आपका, वो है माइनस पी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। तो क्या बन गई ये इक्वेशन, p प्लस रो जी जेड प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू इज इक्वल टू माइनस पी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। और ये क्या बन गई, p उस तरफ चला गया ये सारा, माइनस पी एक्स माइनस रो जी जेड और प्लस पी वन जेड लिख दिया। किसको लिखा, पी वन जेड, ये लिखा है नीचे, इसको लिखा कांस्टेंट माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू को, कांस्टेंट माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू। और इक्वेशन 1 जो है, अब चलो बहुत कुछ इसमें पूरी कंसंट्रेशन से काम करना होगा आपको। और इक्वेशन 1 क्या है आपकी, इक्वेशन 1 है बी नॉट डेल बी बाई डेल जेड प्लस ईटा डेल स्क्वेयर बी। तो ईटा क्या होता है, ईटा क्या होता है 1 बाई म्यू सिग्मा, और डेल स्क्वेयर बी क्या बन गया, डेल स्क्वेयर बी बाई डेल जेड स्क्वेयर। और क्या लिख सकते, डेल स्क्वेयर बी बाई डेल जेड स्क्वेयर प्लस म्यू सिग्मा बी नॉट, कर दिए ना ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बी डेल बी बाई डेल जेड इज 0, इंटीग्रेट करो विद रिस्पेक्ट टू जेड, वी गेट व्हाट, डेल बी बाई डेल जेड प्लस म्यू सिग्मा बी नॉट बी इज इक्वल टू ए। और यहां से क्या बना बेटू, डेल बी बाई डेल जेड इज इक्वल टू ए माइनस म्यू सिग्मा बी नॉट बी। नंबर 7 दे दीजिए इसको, सब चीजों का यूज होगा आगे। अब हम सारी मैक्सवेल मतलब हाइड्रोडायनेमिक, ये कौन सा है, मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक्स वाली इक्वेशंस लेंगे, राइट। फिर स्टेडी स्टेट के लिए ले रहे हैं, कर रहे हैं फिर आगे, ठीक है। तो आगे आगे उसी में अप्लाई कर रहे हैं बेटू। तो अब कौन सी ले लेते हैं, वी नो दैट J इज इक्वल टू कर्ल H, और कर्ल H क्या होता है, 1 बाई म्यू कर्ल V, पता है आपको 1 बाई म्यू क्यों कर रहे हैं, क्योंकि C की वैल्यू पता है हमें, इसलिए 1 बाई म्यू कर्ल V
क्या हो गया 1/μ कर्ल B नॉट प्लस B, और विच इज 1/μ कर्ल B नॉट प्लस B मीन्स अब इसको करेंगे डिटर्मिनेंट आई जे के। फर्स्ट रो क्या बनेगी 0 0 डेल बाई डेल जेड कर्ल का, ठीक है ना। और दूसरा क्या है B0 B नॉट, ये हमने देखा है, फाइंड किया है, जो पहले भी लिया है ना, किया है ना। B नॉट क्या है B क्या है, दोनों को ऐड कर दिया है और हमारे पास 1/μ ये बन गया। डिटर्मिनेंट ऑफ आई जे के 0 0 डेल बाई डेल जेड B0 B नॉट और J इज इक्वल टू, इसको किया हमने सॉल्व किया, we get what 1/μ 0 del B by del Z 0. Now students, after this we will take modified Ohm's law which is J is equal to, जो इक्वेशंस हैं उन्हीं से करेंगे ना, उसी में काम करी जा रहे हैं हम। तो मॉडिफाइड ओम्स लॉ क्या हो गया J इज इक्वल टू सिग्मा E प्लस B क्रॉस B, राइट। तो वीडियो उन्हीं का बनाना पड़ रहा है जो थोड़ा सा लंबा और ऐसे काम है, और तो बेटू ऐसा आपको डायरेक्ट बताती रहूंगी। और इसके बाद आफ्टर दिस वी हैव टू टेक, हाँ ये स्टूडेंट्स ये बन गया हमारा J सिग्मा E प्लस, अब हमने क्या किया B क्रॉस B की वैल्यू पुट कर दी यहाँ, वो क्या है 0 माइनस क्या है B नॉट 0 और J इज इक्वल टू सिग्मा, और E जो है ले लिए तीनों, ये जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है E ये कहाँ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस क्या लिया EX EY EZ और प्लस 0 माइनस B नॉट 0 ले लिया हमने। अब देखेंगे हम कि EX EY EZ है क्या, कितना आता है, क्या आ रहा है, किस तरफ हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस। J इज इक्वल टू क्या हो गया सिग्मा, इसको कर लीजिए इकट्ठा EX और दूसरा क्या बन गया EY माइनस B नॉट EZ। आपको पता ही है ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना EX I कैप प्लस EY माइनस B नॉट J कैप प्लस EZ K कैप, पर ऐसे लिख दिया सीधा कॉमा कॉमा लगा के, एक ही बात है। नाउ कंपेयरिंग 8 and 9 इक्वेशंस, करो कंपेयर 8 और 9 को, दोनों में J है, राइट हैंड साइड कर लो कंपेयर। तो क्या होगा स्टूडेंट्स EX0 और दूसरा है अपना EY माइनस B नॉट इज इक्वल टू 1/μ डेल B बाई डेल जेड, और यहीं से इट इम्प्लाइज डेल B बाई डेल जेड क्या बन गया स्टूडेंट्स, पहले भी हमने ड्राइव किया है डेल B बाई डेल जेड को, फिर करेंगे इनको कंपेयर, देखते हैं क्या क्या मिलता है। जो भी कुछ आ रहा है उसका यूज करते जाएंगे। अब हमारे पास कंटिन्यूटी में सामने नहीं दिख रहा ना, तो इसलिए थोड़ा, पर आप जब कंटिन्यूटी में करते जाएंगे ड्राइव करते जाएंगे सब कुछ क्लियर होगा मेरे बच्चों। सिग्मा EY माइनस B नॉट इज इक्वल टू 1/μ डेल B बाई डेल जेड, और आपका ये क्या बन गया डेल B बाई डेल जेड क्या हो गया म्यू सिग्मा EV माइनस B E नॉट, एंड थर्ड कंपेयर किया तो EZ क्या बन गया 8 और 9 को कंपेयर 0। तो स्टूडेंट्स इक्वेशन 7 आपकी क्या है, उसमें है डेल B बाई डेल जेड इज इक्वल टू A माइनस म्यू सिग्मा B नॉट V। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7 and 10 we get what beta A माइनस म्यू सिग्मा B नॉट V is equal to म्यू सिग्मा EY माइनस म्यू सिग्मा B नॉट, कट गए ये, you will get A is equal to म्यू सिग्मा EY, and from here you will get EY is equal to A upon म्यू सिग्मा, or we can say this EY is equal to A upon म्यू सिग्मा, or we can take this E naught, say this is E naught, or this is E is equal to what 0 E naught 0. Since the electric field is uniform, ले लिया कांस्टेंट है यूनिफॉर्म,
यूनिफॉर्म है, एंड इट्स कंपोनेंट्स नॉर्मल टू द बाउंड्रीज, ठीक है, बाउंड्रीज vanishes, so there are no surface, ठीक है, electric currents, and thus the fluid is, कैसा है fluid? भला यार, अच्छा मेरे को बीच में थोड़ी सी ये हो गई थी बेटा, नहीं क्या करूँ, कहाँ गया? हाँ सॉरी बेटा, थोड़े से डिस्टरबेंस, अब फिर से कंटिन्यूटी में करती हूँ, है ना। यहाँ क्या किया हमने, सिंस द इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी बीच में थोड़ी डिस्टरबेंस हो गई थी ना, मुझे उठना पड़ा था बीच में वीडियो बनाते, क्या करूँ। सिंस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड इट्स कंपोनेंट normal to the boundaries vanishes, so there are no surface electric currents and thus the fluid is unpolarized, ठीक है। इसके लिए ये जो हुआ, फ्लूइड जो है 0 0 मतलब कहाँ ये हो रहा है, बिटवीन x और z में ही है, ठीक है। अब लिखो तो सारे इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी जो है वो उसमें क्या होगी, मतलब 0 0 आ रही है ना। हाँ, सिंस माइनस डेल पी बाई डेल एक्स इज पी एंड डेल बी बाई डेल जेड इज इक्वल टू, और ये माइनस डेल पी बाई डेल एक्स जो है पी लिया है, कौन सा पी है, कैपिटल पी लिखना बेटू, और कैपिटल पी जो है वो क्या ले रखा है। अब इसमें ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन है ना ये, तो थोड़ा सा
ये पी जो है कैपिटल पी ये है माइनस ब्रैकेट के अंदर बी नॉट अपॉन म्यू डेल बी बाई डेल जेड प्लस रो न्यू डेल स्क्वायर बी बाई डेल जेड स्क्वायर। ठीक है, तो पी है और डेल बी बाई डेल जेड जो है वो क्या है स्टूडेंट्स, ए माइनस म्यू सिग्मा बी नॉट बी। ये सारी टर्म्स आपको पता है और ठीक है। और अब नेक्स्ट ये आपकी इक्वेशन 3 अब देखनी पड़ेगी मुझे, इसमें कर रही हूँ तो फिर सारा चेंज हो जा रहा है बार बार, तो इसलिए मुझे इक्वेशन 3, हाँ इक्वेशन 3 आप तो देख सकते हो, आप तो साथ साथ कर रहे हैं वहाँ। तो वो क्या है, माइनस डेल पी बाई डेल एक्स प्लस बी नॉट अपॉन म्यू डेल बी बाई डेल जेड प्लस रो न्यू डेल स्क्वायर बी बाई डेल जेड स्क्वायर इज 0। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट व्हाट, यू नो माइनस डेल पी बाई डेल एक्स इज कैपिटल पी, तो लिख दिया पी, फिर प्लस और आपका डेल बी बाई डेल जेड जो है वो भी क्या था, वो ए माइनस म्यू सिग्मा बी नॉट बी था, तो वो लिख दिया। तो आपका ये आ गया, ठीक है। और रो अपॉन ये आपका बन गया बी नॉट, क्या है ये, हाँ बी नॉट है ये बी नॉट अपॉन म्यू, रो नॉट नहीं है बी नॉट है, बी नॉट अपॉन म्यू और ये डेल बी बाई डेल जेड की वैल्यू बढ़ दी और साथ में प्लस रो न्यू डेल स्क्वायर बी बाई डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0, पिछली इक्वेशन से आया मेरे बच्चों। फिर आपका रो न्यू डेल स्क्वायर बी बाई डेल जेड स्क्वायर प्लस, इसको खोल दो ब्रैकेट को, आपका क्या बन गया, ये बन गया सिग्मा ई नॉट बी नॉट, बिकॉज दिस ए अपॉन म्यू जो है वो क्या है स्टूडेंट्स, सिग्मा ई नॉट, वो है आपका ए अपॉन म्यू जो है वो क्या है सिग्मा ई नॉट, वो पुट कर दिया बेटू यहाँ, ठीक है। तो आपका ये बन गया माइनस सिग्मा नॉट सिग्मा बी नॉट स्क्वायर बी इज इक्वल टू माइनस पी, इनको कर दिया ना, पी को उस तरफ ले आए, इसी को सॉल्व किया और यहाँ ये पुट कर दिया, ए अपॉन म्यू जो है वो ई नॉट सिग्मा, फ्रॉम हियर वी गेट रो न्यू डेल स्क्वायर बी बाई डेल जेड स्क्वायर माइनस सिग्मा क्या बनाइए बी नॉट स्क्वायर बी इज इक्वल टू, ये माइनस बाहर ले लिया, पी प्लस सिग्मा ई नॉट बी नॉट बना ना, फिर बना डेल स्क्वायर बी बाई डेल जेड स्क्वायर माइनस सिग्मा रो न्यू बी नॉट स्क्वायर बी इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में पी प्लस सिग्मा ई नॉट बी नॉट अपॉन रो न्यू, और पता है ना बेटू आपको सारा ये न्यू जो है अपना म्यू अपॉन रो है, न्यू में कन्वर्ट करें, ठीक है। और ये जो है आपका क्या बन गया डी स्क्वायर डेल बाई डेल जेड ले लिया डी, तो ये आपका डी स्क्वायर माइनस सिग्मा रो बी और बी नॉट स्क्वायर बी बाहर बी इज इक्वल टू माइनस यहाँ बी पी प्लस सिग्मा ई नॉट बी नॉट रो न्यू और इसको ई रेस पर 0 जेड, ठीक है। ये हमने बना ली डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड कर लो। ऑक्सिलरी में लेफ्ट हैंड साइड पुट किया 0 डी स्क्वायर माइनस सिग्मा अपॉन रो न्यू बी नॉट स्क्वायर बी, दिस इज इक्वल टू किसमें कर दिए 0 के पुट, फिर डी स्क्वायर जो आपका क्या आ गया स्टूडेंट्स, ये आ गया सिग्मा बी नॉट स्क्वायर रो न्यू और डी जो है वो प्लस माइनस अंडर रूट सिग्मा रो न्यू बी नॉट, तो कंप्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो गया, दो आगे वैल्यूज, ठीक है, प्लस माइनस एम बोल दो, तो ये क्या हो जाएगी c1 e रेस्ट पावर m प्लस c2 e रेस्ट पावर माइनस m। तो कंप्लीमेंट्री फंक्शन इज व्हाट स्टूडेंट्स, किस में है ये डिपेंडेंट वेरिएबल, किस में है बी में, अलॉन्ग जेड एक्सिस है वेलोसिटी, तो बी जेड करके लिख रहे हैं। तो क्या बन गया मेरे पुत्र कंप्लीमेंट्री फंक्शन c1
ई रेस टू पावर अंडर रूट सिग्मा रो वी नॉट जेड प्लस C2 ई रेस टू पावर अंडर रूट सिग्मा रो न्यू बी नॉट जेड। अच्छी तरह करना अपने सारा। अब मैं क्या बोल रही हूँ, ले लो C2 C1 चूज कर लो, बराबर है। तो हमारे पास क्या आ गया B2, तो 2C1 बाहर और हमारे पास ये बन गया ई रेस टू पावर अंडर रूट सिग्मा रो न्यू बी नॉट जेड प्लस ई रेस टू पावर अंडर रूट माइनस सिग्मा रो न्यू वी नॉट जेड अपॉन 2, राइट मेरे बेटा। और दिस इज B2Z और you know 2C1 और दिस इज व्हाट cos हाइपरबोलिक x, x मतलब अंडर रूट सिग्मा रो न्यू वी नॉट जेड हुआ ना। और इट्स पर्टिकुलर इंटेग्रल इज व्हाट बेटा, यू नो पर्टिकुलर इंटेग्रल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है परली तरफ, तो क्या होता है 1 डी स्क्वायर माइनस सिग्मा रो न्यू बी नॉट स्क्वायर और इनटू जो भी यहाँ है राइट हैंड साइड में वो है आपका माइनस साइन है, माइनस लगा दिया P प्लस सिग्मा ई नॉट बी नॉट रो न्यू और ई रेस पावर 0 जेड और विच इज इक्वल टू व्हाट बेटा। और आपको पता है ये क्या बन गया आपका, इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस, क्योंकि 0 डी की जगह 0 आ गया तो आपका बन गया 1 अपॉन माइनस सिग्मा, क्योंकि वो एक्सपोनेंशियल की जो पावर होती है वो आती है ना डी की जगह, तो वो 0 है तो इसलिए आपका 0 आ गया। और ये आपका बन गया 1 अपॉन माइनस सिग्मा बी नॉट स्क्वायर रो न्यू इंटू बेटा माइनस P प्लस सिग्मा ई नॉट बी नॉट रो न्यू। ये आपका ये आगे आ जाएगा यहाँ से पर्टिकुलर इंटेग्रल। पोचा लगाता हुआ दिख रहा है एक ना यहाँ ऐसा। हाँ ये है बेटा इक्वेशन 3। और फिर आपका क्या बन गया, ये क्लियर हो रहा होगा मेरे बच्चों, नहीं पता लगेगा प्लीज़ मैडम से पूछ लेना। वैसे कोशिश पूरी कर रही है कि मेरे बच्चों को अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। अब थोड़ा सा और रहा फिर ख़त्म, वेट करो, इतना लंबा लेक्चर है ये। और सोचो करते टाइम कितना टाइम लग रहा होगा। अच्छा बहुत बेटा हर कुछ सिलेबस है इसमें, और मेरे बच्चों करेंगे आप ठीक से, मज़ा आता है ना अपना मैथ्स करने में। मेरे बच्चे समझते हैं कि कितने उससे मैम कर रही हैं। मेरे प्यारे से बच्चे हैं सारे के सारे, बहुत प्यार करती हूँ मैं, बच्चे भी बहुत अच्छे से हैं मेरे, है ना। तो ये हो गया। फिर बेटा ये आपका पर्टिकुलर इंटेग्रल, इसको BPZ करके लिख दे रही हूँ ना, है ना। और जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखा था वो BCZ करके लिख दिया था कम्प्लीमेंट्री के लिए, ठीक है। तो BPZ आपका क्या बन गया मेरे बच्चों, इसको सॉल्व किया अच्छे से तो आपका ये बन गया P प्लस सिग्मा ई नॉट बी नॉट अपॉन सिग्मा बी नॉट स्क्वायर। तो complete solution, you know students, this is equal to BCZ plus BPZ। तो BZ is equal to complementary function क्या है आपका 2C1 cos हाइपरबोलिक अंडर रूट सिग्मा रो न्यू प्लस बी इंटू बी नॉट जेड प्लस P प्लस सिग्मा ई नॉट वी नॉट अपॉन सिग्मा बी नॉट स्क्वायर, राइट। क्लियर बेटा। तो ये आपका BZ क्या हो गया 2C1 cos हाइपरबोलिक। ये जो सारी टर्म है इसको मैंने क्या ले लिया, M ले लिया। M किसको लिया मेरा पुत्र, मैंने लिया अंडर रूट सिग्मा रो न्यू बी नॉट जेड को M ले लिया प्लस P सिग्मा ई नॉट बी नॉट अपॉन सिग्मा बी नॉट स्क्वायर। क्लियर, इसको लिया। आगे क्या है, सारा हमने फर्स्ट ईयर में भी बाउंड्री कंडीशन सब पढ़ाई है। तो क्या है, वन ऑफ द बाउंड्री कंडीशंस इज दैट देयर इज नो स्लिप कंडीशन एट द प्लेन वॉल्स। क्या है, वन ऑफ द बाउंड्री कंडीशन इज दैट देयर इज नो स्लिप कंडीशन एट द प्लेन वॉल्स। तो क्या होता है इससे,
तो B मस्ट है वेलोसिटी B0 एट Z इज इक्वल टू प्लस माइनस L. At Z is equal to L, B is equal to 0. Right? So therefore equation this 11 reduces to, at Z is equal to L, B is 0, we get what? We get here 0 is equal to 2C1 cos hyperbolic under root sigma rho nu B naught L plus P plus sigma B naught E sigma B naught square. So we get here V is 0. Or from here we get sigma, we get the value of C1. कैलकुलेट करो मेरे बच्चे इसको. और M जो है मैंने बताया आपको, M जो है वो क्या है, और यहाँ हमने M जो है सुनो, ये 0 क्या बन गया आपका, अच्छा ये ऊपर कॉस करके 2C1 कॉस M कर दिया था ना. Z क्या लिखा था मैंने, Z अब L ले रहे हैं है ना. ऊपर जो था ऊपर भी M लगा दिया था ना, तो उसको किस में लगाया था, अंडर रूट सिग्मा रो न्यू V नॉट Z में. अब क्या हो गया, वो Z की जगह क्या आ गया, L आ गया, वेलोसिटी V0 आ गई, और हमारे पास C1 क्या आ गया, ये आया. और यहाँ M जो है, जो कॉस हाइपरबोलिक के साथ जो नंबर है वो क्या है मेरे बच्चों, अंडर रूट सिग्मा रो न्यू B नॉट L, और दिस इज नॉन एज हार्टमैन नंबर. निकाल लिया हमने हार्टमैन नंबर, ये है हार्टमैन नंबर, याद करना है, सब लग गया होगा पता. ये C1 कैलकुलेट कैसे किया, यहीं से किया. 0 इज इक्वल टू 2C1 कॉस हाइपरबोलिक अंडर रूट सिग्मा रो न्यू B नॉट L प्लस P प्लस सिग्मा B नॉट E नॉट सिग्मा B नॉट स्क्वायर. फ्रॉम हियर वी हैव कैलकुलेटेड दिस C1, और C1 में और जो M है दैट इज under root sigma rho nu B naught L, and this is known as Hartmann number. This is M. Now equation 11 implies क्या बन गई, equation 11 सब्स्टिट्यूट करो ये वैल्यूज. क्या वैल्यू पुट करेंगे, C1 पुट करेंगे मेरे बच्चों, C1 पुट करेंगे, और फिर इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो. जैसे सब्स्टिट्यूट किया आपने, जैसे आपने सब्स्टिट्यूट किया, नीचे ऊपर नीचे 2 है, कट गया, और आपके पास ये आ गया माइनस P प्लस सिग्मा B नॉट E नॉट सिग्मा B नॉट स्क्वायर 1 अपॉन कॉस हाइपरबोलिक M, कॉस हाइपरबोलिक M Z सर B भी है पीछे, L है, सारा करेंगे पता लगेगा, प्लस P सिग्मा E नॉट B नॉट सिग्मा B नॉट स्क्वायर, और दिस इज इक्वल टू, पूरा आपको लगेगा 2-4 घंटे लगेंगे इसको समझने में मेरे बच्चे. क्लियर तो कर रही हूँ सारा. P प्लस सिग्मा B नॉट E नॉट अपॉन सिग्मा B नॉट स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस कॉस हाइपरबोलिक MZ अपॉन L कॉस हाइपरबोलिक M. आ गया ना मेरे बच्चे, ये सारा पुट्टी किया वैल्यूज, और क्या कर रही हूँ, और वी गेट P नॉट नहीं, P प्लस सिग्मा B नॉट E नॉट सिग्मा अपॉन सिग्मा B नॉट स्क्वायर. ये क्या बन गया आपका, कॉस हाइपरबोलिक M माइनस कॉस हाइपरबोलिक M Z अपॉन L अपॉन कॉस हाइपरबोलिक M. ये आ गया मेरे बच्चों, ये आया सारा. और फिर B Z क्या बनेगी, इसके बाद चलते हैं, और बी जेड इज इक्वल टू दिस, इसी में ही, इसी को पिछली इक्वेशन को ही इकट्ठा किया, राइट. कॉस हाइपरबोलिक M वहाँ ले आए, ये बन गई आपकी P प्लस सिग्मा B नॉट E नॉट अपॉन सिग्मा B नॉट स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक M इंटू कॉस हाइपरबोलिक M कॉस हाइपरबोलिक M Z अपॉन L. मेरे बच्चों नहीं पता लगेगा प्लीज मैडम से पूछ लेना, ठीक है ना, मेरे को फिर ऐसे अच्छा नहीं लगता. अब मैं क्या करूं, इस बे से अपनी ओर से बहुत अच्छे से कोशिश कर रही हूँ.
इफ नो करंट फ्लो इन द लिक्विड देन, कोई भी करंट नहीं फ्लो हो रहा है लिक्विड में तो क्या होगा, बिटवीन -L to L, जो भी डिस्टेंस दी है बिटवीन टू प्लेट्स लिखे है ना, लॉन्ग एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस है, कोई भी फ्लूइड नहीं, हमने भी देखा करंट तो लॉन्ग वो बाई एक्सिस वो भी कांस्टेंट मतलब यूनिफॉर्म था, है ना, और हमारा तो फ्लो कर रहा है एक्स और जेड में। तो इफ नो करंट, अब क्या करेंगे, अब देखते हैं अलग अलग क्वेश्चन आएंगे इसमें, अलग अलग तरह के 8-10 क्वेश्चन एक के ही अंदर हैं बनेंगे मेरे बच्चों, और अच्छे से समझना, जब पूरा आएगा जो मैंने मेंशन किया क्वेश्चन तो 16 मार्क्स का आएगा, पूरे का पूरा लिखना है। तो इसको करने के लिए आपको कम से कम 2-3 दिन चाहिए अच्छे से करने के लिए, और मैडम ने तो पढ़ाना ही है और आपने रिवाइज करना है मेरे बच्चों खुद, समझ रहे हो। अच्छा, अब लिख रहे हैं इफ नो करंट फ्लो इन द लिक्विड देन इंटीग्रेशन फ्रॉम -L to L jy/dz इज 0। हमने देखा था ना, जो भी हमारे पास आया था वो अलॉन्ग बाई एक्सिस आया था, इसलिए हमने यहाँ क्या ले लिया, जो हमारे पास ये है करंट डेंसिटी अलॉन्ग बाई एक्सिस है इसलिए लिया ये, और ये जो है ये क्या है jy है, पर ये किसके इसमें है, अलॉन्ग जेड मैग्नेटिक फील्ड जो है, ठीक है ना, कांस्टेंट है वो लॉन्ग जेड, इसमें क्या फिर विद रिस्पेक्ट टू डी जेड करेंगे विच इज 0, इंटीग्रेशन -L to L jy इज सिग्मा E0 माइनस सिग्मा B0 B निकाला है हमने डी जेड, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर लो अलग अलग करके, सिग्मा B0 और B की वैल्यू पुट कर दो मेरे बच्चों, यहाँ सिग्मा B0 बाहर आया उसकी वैल्यू पुट कर दी, हमने पीछे फाइंड की है वो सारी पुट की, P प्लस सिग्मा E0 B0 अपॉन सिग्मा B0 स्क्वायर 1 माइनस कॉस हाइपरबोलिक mz अपॉन L कॉस हाइपरबोलिक m dz इज 0, ये कर दी। तो हमारा 2 सिग्मा E0 इंटीग्रेशन मतलब 2 क्या किया, -L to L है तो डबल कर दिया तो 0 to L हो गया, -2 0 to L f, और इसको कर रहे हैं अब हम, f हमने ले लिया, क्या लिया, P प्लस सिग्मा E0 B0 अपॉन B0 को f ले लिया, और फिर हमारे पास क्या है, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, इंटीग्रेट किया ये आ गया -2f, f कर दिया z माइनस, इसको इंटीग्रेट किया कॉस हाइपरबोलिक, इसको तो साइन हाइपरबोलिक mz अपॉन L, L अपॉन m कॉस m 0 to L, आपको पता है कॉस हाइपरबोलिक उसका तो साइन हाइपरबोलिक आ जाता है, और दिस इज पुट कर दी वैल्यू 0 to L -2f L माइनस z की जगह L आ गया 0, और हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट, सिग्मा E0 इज इक्वल टू f 1 माइनस साइन हाइपरबोलिक m कॉस हाइपरबोलिक m, ठीक है, और 2L कट गया, ये बन गया सिग्मा E0, और f की वैल्यू आप पुट कर दी यहाँ, और दिस इज 1 माइनस 1 m, और ये आपका साइन अपॉन कॉस ये बन गया tan हाइपरबोलिक m, और हमारे पास ये आ गया सिग्मा E0 B0 इज इक्वल टू P प्लस सिग्मा E0 B0 1 माइनस 1 बाई m tan हाइपरबोलिक m। इज इट क्लियर बेटा, और कुछ नहीं है, इसी को सॉल्व कर रहे हैं, अच्छा लगता है करो। और नेक्स्ट, और इट इम्प्लाइज सिग्मा E0 B0 1 माइनस 1 प्लस tan हाइपरबोलिक m अपॉन m, कट गया ये बच्चे, P m माइनस tan हाइपरबोलिक अपॉन m, राइट, यही आया P अपॉन सिग्मा B0 m माइनस tan हाइपरबोलिक m tan हाइपरबोलिक m, और E0 इज इक्वल टू P अपॉन सिग्मा B0 m, और दिस इज 1 अपॉन tan हाइपरबोलिक m इज कॉट हाइपरबोलिक m -1, और दिस इज इक्वेशन, ये तो आपकी 13 बन गई, और 12वीं आपकी कौन सी इक्वेशन बनी है, वो बनी है Bz इज इक्वल टू जो वैल्यू आई है इसकी, तो अब लिखो therefore इक्वेशन 12 implies, अब E0 की वैल्यू पुट करनी उसमें, P प्लस वो क्या है सिग्मा B0
और ई नॉट की वैल्यू पुट कर दी, वो है पी अपॉन सिग्मा नॉट, कट गया ये एम कॉट हाइपरबोलिक एम माइनस एम, राइट। आगे था उसमें कॉस हाइपरबोलिक एम, वही पुट कर रहे हैं हम वैल्यूज, माइनस कॉस हाइपरबोलिक एम जेड अपॉन एल अपॉन सिग्मा बी नॉट स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक एम बी जेड। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, जो कट रहा है उसको काट रहे हैं। हमारे पास ये आ गया बी जेड पी एम कॉट हाइपरबोलिक एम सिग्मा बी नॉट स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक एम, आ गया है कॉस हाइपरबोलिक एम माइनस कॉस हाइपरबोलिक एम जेड अपॉन एल। ये बन गया बच्चों, जो काटना था वो काट दिया, राइट। वहां P माइनस P बना तो वो कट गया, तो इसलिए ये बनी हमारे पास 14 इक्वेशन। क्लियर हो रही होगी कैसे कैसे बना। नाउ मीन वेलोसिटी इज गिवन बाई, कहाँ से कहाँ है, दैट इज बी नॉट, ये फॉर्मूला याद रखना, माइनस एल टू एल बी अपॉन टू एल डी जेड, दिस इज द मीन वेलोसिटी। दोनों ये दिया है इस बाउंड्री, मैंने माइनस एल टू एल फ्लूइड फ्लो जो हो रहा है, तो ये होता है इसका माइनस एल टू एल वी अपॉन टू एल डी जेड वी नॉट। बस अब v की वैल्यू पुट कर दी यहाँ, पी एम कॉट हाइपरबोलिक एम सिग्मा बी नॉट स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक एम, कॉस हाइपरबोलिक एम माइनस कॉस हाइपरबोलिक एम जेड अपॉन एल डी जेड। मेरे बच्चों सारा कुछ बता रही हूँ, फिर भी क्लियर ना हो मेरे से फ्री है आप पूछने के लिए, फ्रीली पूछ सकते हैं, जैसे क्लास लगती है उसमें भी। ये तो एक्स्ट्रा कभी कभी बीच में वीडियो में भी हो जाता है कि बच्चों को पूरा अच्छे से पता नहीं लगे तो। अब इस चीज इक्वल टू 1/2l इंटीग्रेशन माइनस एल टू एल पी एम कॉट हाइपरबोलिक एम सिग्मा बी नॉट स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक एम, कॉस हाइपरबोलिक एम माइनस कॉस हाइपरबोलिक एम जेड अपॉन एल डी जेड। नाउ दिस कट दिस विद दिस, क्यों 0 to l हो गया, डबल हुआ तो मतलब ऐसे करते हैं ना, है इवन फंक्शन इवन हो, है ना, इंटीग्रेशन माइनस a टू a ऑफ x dx इवन है तो ट्वाइस हो जाता है उसका, और 0 to a कर दिया f ऑफ x dx, मतलब वो वैल्यू ट्वाइस हो जाएगी ना, 2 into 0 to a हो जाएगी, एफ एक्स डी एक्स कर देंगे। अगर इवन हो ऑड हो तो फिर 0 हो जाता है, तो कॉस बा इवन है, तो फिर इसलिए ये फॉर्मूला लग रहा है, यहाँ पता होना चाहिए आपको क्यों हो रहा है। सारा हर चीज़ बता रही हूँ, अब कैलकुलेट तो मेरे बच्चों मेहनत तो करनी पड़ेगी, मैथ्स है ये, मैथ्स है ना, पता है ना। और इंटीग्रेशन 0 to l पी एम कॉट हाइपरबोलिक एम सिग्मा बी नॉट स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक एम, कॉस हाइपरबोलिक एम माइनस कॉस हाइपरबोलिक एम जेड अपॉन एल डी जेड। और मेरे बच्चों इसको सॉल्व किया 1/l, इसको सॉल्व कर लो, जब इंटीग्रेट किया इसको तो जेड कॉस हाइपरबोलिक एम माइनस एल अपॉन एम साइन हाइपरबोलिक एम जेड अपॉन ये आपका l, तो 0 to l बन गया, इसको मतलब लगा देंगे लिमिट्स को, और हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बी नॉट 1/l पी एम कॉट हाइपरबोलिक एम सिग्मा बी नॉट स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक एम, जेड की जगह l आ जाएगा मेरे बच्चों, जेड की जगह l आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे और हमारे पास ये बन जाएगा पी कॉट हाइपरबोलिक एम सिग्मा बी नॉट सिग्मा नहीं क्या बनेगा, ये बनेगा मेरे बच्चों पी कॉट हाइपरबोलिक एम सिग्मा बी नॉट स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक एम कॉस हाइपरबोलिक एम माइनस साइन हाइपरबोलिक एम, ये बनेगी 15 इक्वेशन। अब बेटा 14 और 15 को देखो, एक बी है एक बी नॉट है, ठीक है, मीन वेलोसिटी और ये वेलोसिटी, तो ये जो है दोनों की रेशो ले लेते हैं, तो b अपॉन बी नॉट आ गया डिवाइड करके, जैसे ही डिवाइड किया वी गेट ऑन डिवाइडिंग वी गेट b अपॉन बी नॉट दिस m cos हाइपरबोलिक m माइनस cos हाइपरबोलिक m z अपॉन l m cos हाइपरबोलिक m माइनस साइन हाइपरबोलिक m,
तो b जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ये बन गया b नॉट m कॉस हाइपरबोलिक m, हार्टमैन नंबर है m, बता दिया क्या होती है इसकी वैल्यू, ये देखनी है आपने सबने। तो इक्वेशन 16 बन गई। फ्रॉम इक्वेशन 16 हार्टमैन वेलोसिटी है ना, ये जो है फ्रॉम इक्वेशन 16 हार्टमैन वेलोसिटी कर्व फॉर वेरियस वैल्यूज ऑफ m इज शोन एज फॉलोज। ये दिख रही है, ये है ना, ये इक्वेशन 16 है, ये आ गया हमारे पास। और हार्टमैन वेलोसिटी कर्व बोलते हैं इसको फॉर वेरियस वैल्यूज ऑफ m हार्टमैन नंबर है, इसमें ले रहे हैं, देखो ये ले रहे हैं वैल्यू। द हार्टमैन वेलोसिटी प्रोफाइल फॉर द दीज नंबर्स m0 1 3 6 10 है ना, कैलकुलेट किया, इसको कैलकुलेट किया है। तो ऐसी कर्व बनेगी, ऐसी कर्व ये बनेगी, ये बना आपका, क्या बना ये हार्टमैन वेलोसिटी कर्व, ये बन गया आपका प्रोफाइल, ये जो है वेलोसिटी प्रोफाइल फॉर वेरियस वैल्यूज ऑफ m, ये बना बच्चों, ये है क्लियर। तो इसमें क्या है ये देखो, इतना तक करना था, पर और क्या क्या है इसमें ये देख लेते हैं। द ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड, ये हुआ ट्रांसवर्स, ये हो रहा है along z axis. The transverse magnetic field generates electric current which related the fluid in the central region and accelerate the fluid near the boundary. ये देखो इससे क्या लग रहा है पता है ना, नियर द बाउंड्री ये क्या हो रहा है, द ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड हुआ ये जनरेट, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड जनरेट्स इलेक्ट्रिक करंट विच रिलेटेड द फ्लूइड इन द सेंट्रल रीजन। ये देखो यहाँ ज़्यादा हो रहा है ना ऊपर को, है ना, सेंट्रल रीजन एंड एक्सलरेट द फ्लूइड नियर द बाउंड्री, फिगर से हो रहा है, देखो क्लियर है, ये निकला। अब नाउ टू फाइंड द डिस्टर्बेंस इन मैग्नेटिक फील्ड, अब हमने फाइंड करनी है वो B। नाउ टू फाइंड द डिस्टर्बेंस इन मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम इक्वेशन 7 हमारे पास था ये डेल बी बाई डेल जेड, वो तो ली थी हमने खुद ना, अब फाइंड करते हैं। म्यू सिग्मा बी नॉट बी इज इक्वल टू ए, अब क्या किया डेल बी बाई डेल जेड म्यू सिग्मा, अब बी की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ, तो क्या आई वो बी नॉट, बी की आई पी एम, जो भी वैल्यू थी वो पुट कर दी बच्चों यहाँ, अपॉन सिग्मा बी नॉट स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक एम कॉस हाइपरबोलिक एम माइनस कॉस हाइपरबोलिक एम जेड अपॉन एल इज इक्वल टू ए, पुट कर दी। हमारे पास बना डेल बी बाई डेल जेड इज इक्वल टू म्यू अपॉन बी नॉट पी एम साइन हाइपरबोलिक एम कॉस हाइपरबोलिक एम माइनस का कॉस हाइपरबोलिक एम जेड अपॉन एल इज इक्वल टू ए। अब इंटीग्रेट कर लो इसको, बी फाइंड कर रहे हैं, बी विद रिस्पेक्ट टू जेड कर रहे हैं, तो यहाँ भी जेड लग गया, यहाँ क्या हो गया आपका साइन एम जेड अपॉन एल इंटू, फिर से किया इसका डेरिवेटिव, क्या बन गया आपका स्टूडेंट, या अपॉन करके करते हैं ना, एम अपॉन एल, वो क्या बन गया आपका एल अपॉन एम विच इज इक्वल टू ए जेड। ठीक है, ये बनी बेटू। और आगे क्या आया, सिंस magnetic field B is continuous at the plane boundary, क्या है, since magnetic field B is continuous at the plane boundary, क्या है, since magnetic field B is continuous at the plane boundary then B is equal to 0 at Z is equal to plus minus L, कंटिन्यूस है। ठीक है, तो हमारा क्या है ये, एट जेड इज इक्वल टू एल, बी इज इक्वल टू 0,
तो हम क्या करेंगे, z जो है l पुट करेंगे और b 0 करेंगे, कर दिया। और हमारे पास ऐसा करने से a की वैल्यू ये आ गई बच्चों, म्यू पी एम बी नॉट साइन हाइपरबोलिक एम कॉस हाइपरबोलिक एम माइनस साइन हाइपरबोलिक एम अपॉन एम। तो इक्वेशन जो है अपनी कौन सी, पिछली इक्वेशन 17, उसमें पुट कर देंगे a की वैल्यू, पुट कर दो a की वैल्यू पुट कर दो। तो आपके पास क्या बन गया, ये सारा पुट कर दिया इंटू जेड लग गया और इज इक्वल टू दिस, ये आपका b प्लस म्यू पी एम बी नॉट साइन हाइपरबोलिक एम, ये सारा हमने पुट किया इसमें। देखो इक्वेशन, ये जो हमारे पास b की वैल्यू, इसको सॉल्व करके हमारे पास ये b जो है ये आ गया, विच इज द रिक्वायर्ड डिस्टर्बेंस इन मैग्नेटिक फील्ड। ये आ गई बेटा, ये आई, कैसे कैसे आई वो सारा आपको बता दिया। यहाँ पुट करना वैल्यूज, नहीं क्लियर होगा मैडम से पूछना, फिर बता देती हूँ भाई। ए आ गई, तो हमारे पास जो इक्वेशन थी b प्लस 17 इक्वेशन में जाना आप, तो उसमें पुट कर दो मेरे बच्चों, उसमें पुट कर दो। उसमें था b प्लस म्यू पी एम बी नॉट साइन हाइपरबोलिक एम कॉस एम जेड माइनस साइन हाइपरबोलिक एम जेड अपॉन एल अपॉन एम इज इक्वल टू ए हमारे पास ये आ गया, म्यू एम बी नॉट साइन हाइपरबोलिक एम कॉस हाइपरबोलिक एम माइनस साइन हाइपरबोलिक एम अपॉन एम। आया कि नहीं मेरे बच्चों, ये आ गया इंटू जेड, जेड है ये, जेड है, और ये बी बन गया आपका। फिर जैसे ही था दूसरी तरफ जाके ये बन गया आपका सारा, इसको सॉल्व किया करो इसको और आपके पास ये आ जाएगा सब, ठीक है, ये आ जाएगी रिक्वायर्ड डिस्टर्बेंस इन मैग्नेटिक फील्ड। इस तरह से करना मेरे बच्चों। ओके, हैव अ नाइस डे। कोई प्रॉब्लम रहेगी अपनी मैडम से पूछ लेना, ठीक है। ओ मेरे बच्चों करो इसको, बहुत पढ़ना पड़ता है मेरे पुत्र है, ये टॉपिक ही ऐसा है, ये टॉपिक ही ऐसा है ना। हाँ, मेहनत करनी पड़ेगी, पूछ लेना आप मेरे से। ओके, बाय।